ابھی آپ کے وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر فرمائی اور اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بڑا دکھ لگا ہے اس پر. اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم ادب کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں مولانا سے کہ عمران خان نے ساجد نقوی سے بھی بڑی گستاخی کی ہے؟ توجہ ہے؟ عمران خان نے جو لفظ کہے ہیں وہ لفظوں پہ میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ساجد نقوی سے بھی سخت لفظ کہے. ساجد نقوی وہ ہے جو ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا، خلافت خلفاء کا منکر، حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا منکر. تو میں پوچھ سکتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ساجد نقوی کے ساتھ تو سینے سے سینہ ملاتا ہے، اور ان چند لفظوں پہ تجھے تکلیف ہوئی ہونی چاہیے، لیکن یہ دو رخی کیوں ہے؟ اگر باقی تیرے دل میں عظمت اصحاب رسول ہے، پھر دشمن اصحاب کو گلے لگانا، اس کے ساتھ اتحاد کرنا، اس کے ساتھ جناب مل کر تگو دو کرنا، اس کا نام دوغلی پالیسی، اور اس کا نام عربی میں منافقت اور دو رنگی ہے. اگر عظمت صحابہ تیرے دل میں ہے تو جس دل میں عظمت صحابہ ہو وہ کبھی دشمن صحابہ کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن عظمت صحابہ بھی سیاست کے لیے کہ ادھر دو لفظوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے مولانا کا، اور ادھر جو ہے پورا گروپ اصحاب رسول کا علل اعلان دشمن، اور جو واضح طور پہ بے ایمان کہتے ہیں میں خلافت نہیں مانتا، ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، اور جس مذہب میں دن رات صحابہ پہ لعنت کرنا ثواب ہے، ان کو تو اپنے ساتھ میں لایا، انہی کے ساتھ کھانا، انہی کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے ساتھ اٹھنا، انہی کے ساتھ سینہ سے سینہ ملانا. اور پھر ایک آدمی تھا وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، دوسرا ہے اس نے مسجد میں تھوکا. یہ جو پیشاب کر رہا تھا نا، اس نے کہا کاش میں اگر فارغ ہوتا نا تجھے بتاتا وہ مسجد کی بے ادبی کیسے کی جاتی ہے. تو مولانا سے ہمارا یہ سوال حق بنتا ہے یا نہیں؟ جی بولو. اچھا، دوسرا ایک وہ لوگ ہیں جو عظمت صحابہ کے نام پہ سب کچھ کھا رہی ہے. ووٹ بھی عظمت صحابہ کے نام پہ، نوٹ بھی عظمت صحابہ کے نام پہ، اور پوری جماعت کا نام بھی عظمت صحابہ کے نام پہ، لیکن وہ بھی عمران خان کے اب تک اتحادی ہے. تو کم از کم حق بنتا ہے اگر واقعی تمہارے دل میں عظمت صحابہ ہے تو اب تو چھوڑ دو. صرف زبان سے مذمت کرنا کافی ہے. باقی تیسرے نمبر، عمران خان نے جو لفظ کہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. وہ اپنی جو موضوع سے رکھا وہ گستاخی کرنا نہیں چاہتا تھا، اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا، لیکن علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور اس سے جو الفاظ صادر ہوئے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور وزیر اعظم کو اس پہ غور کر کے معافی مانگنی چاہیے. کہتا ہے کچھ 313 بدر میں آئے باقی ڈر گئے. یہ کون ڈرے تھے؟ 313 بدر میں آئے باقی ڈر گئے تھے. کون ڈرا تھا؟ میرا خیال تو ہے چلو صحابہ ڈر گئے. واہ، قرآن کہتے ہیں اشداء علی الکفار. اشدہ کے 3 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں بلغ اشدہ،
अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिर से ना दबने वाले ना डरने वाले। कुरान कहते हैं असहाबे मोहम्मद काफिर से डर नहीं सकते। इसलिए वजीर आजम साहब कम अज कम मेहरबानी फरमाओ, कुछ ना कुछ दीन पढ़ो, बाद में ये तबसरे लगाओ। असहाबे पैगंबर डरने वाले नहीं। जो बदर में नहीं आ सके ना, बदर की लड़ाई भी इन्हें नहीं पता। बदर की लड़ाई तो अचानक हुई, बाकायदा मंसूबाबंदी भी नहीं थी, और अचानक रास्ते पे यह प्रोग्राम बना। लंबा वाकया, लेकिन फिर भी याद रखो, जो सहाबा बदर से रह गए थे, तो जब बदर की लड़ाई हुई तो उन असहाबे रसूल ने तो मन्नतें मानी थी कि या अल्लाह अब एक मौका आए। हमें पता नहीं था बदर की लड़ाई का, और फिर वही सहाबा थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने अर्ज की कि ओहद की लड़ाई हम मैदान में करेंगे, मदीने के अंदर नहीं करेंगे, बाहर मैदान जंग में निकलेंगे और आमने सामने लड़ेंगे। इसलिए ये लफ्ज कहना कि सहाबा डर गए थे, पहले नंबर तो एक बहुत बड़ा झूठ और कज़ब बयानी है, और दूसरा साहबे रसूल की तौहीन पर मबनी ये लफ्ज हैं। तो इसलिए वजीर आजम ने अगर नादानिस्ता तौर पे कहे हैं, हमारा मशवरा है उसी तरह टीवी पर आकर, मीडिया पे आकर आप माफी मांगे, वरना अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर मकसद ये होगा कि तूने जानबूझकर ये बेईमानी की, गुस्ताखी की है, और जो सहाबा का गुस्ताख है उसको हम मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उसने कहा कि बाद साहबा लूट मार, खुदा के बंदे लूट मार नहीं, माले गनीमत है। ये साहबा के लिए लूट मार का लफ्ज बोलना यह भी जिहालत की इंतहा, और वजीर आजम होने के साथ जाहिल आजम भी है। जाहिल आजम इतना बड़ा जाहिल कि माले गनीमत को लूट मार, ये वो लूट मार नहीं जो पीटीआई और नून लीग एक दूसरे पे करती है। ये सियासियों वाली लूट मार नहीं, ये वो माले मुतबर्रिक, माले गनीमत, जिसके मुतालिक मेरे रसूल ने फरमाया जो एला रिज़्क़ी ताहता रुम ही, अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का रिज़्क़ रखा है ताहता रुम ही, मेरे नेज़े की नोक के नीचे। ये जिहाद में हासिल होने वाला माल, ये माले गनीमत मुतबर्रिक माल है। एक दूसरा, वो जो तीर अंदाज थे उनकी इज्तिहादी खता थी, इज्तिहादी खता, और इज्तिहादी खता को कुरान ने दो मकाम पे कसमें उठा के फरमाया, वलकद अफा अनकुम अफल्लाहु अनहुम, अल्लाह ने फरमाया वो मेरे नबी के सहाबा की इज्तिहादी खता थी, और मुझे अपने जात की कसम मैंने उसे माफ कर दी है। और खता से भी कोई गलत न समझे, खता भी सिर्फ ये थी कि अब जंग तो जीती जा चुकी है, यहां दर्रे पे रहना चाहिए या नहीं, इसमें इख्तिलाफ हुआ और इज्तिहादी मसला था। तो इसलिए वजीर आजम साहब को जरा सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तारिक जमील ने ये तकरीर लिख कर दी है, नजरिया उसी वाला है। तो साहबा डरने वाले नहीं, साहबा तो वो है, मर्द तो मर्द, औरत अपने बेटों को तैयार कर रही है, बेवा औरत हजरत खनसा, और बेटों को तैयार करके फरमाती है मेरे बेटों, पहला मसला है कि एक भी मेरे घर अब वापस ना आना, तौहीद की खातिर में भेज रही हूं, सब ने मैदान जंग में अपनी जानें कुर्बान करनी है। और साथ फरमाया मैं सब की मैयतों को देखूंगी, अगर किसी की मैयत पर पुश्त की जानिब से जख्म हुआ तो क्यामत को भी माफ नहीं करूंगी, क्यामत को भी माफ नहीं करूंगी। चुनाचे जब वो शहीद हुए, हजरत खनसा ने देखा किसी एक बेटे की भी पुश्त पे जख्म नहीं था, सबके सीने पे थे। ये साहबा डरने वाले हैं, साहबा वो हैं। हजरत अबू दजाना
पैगंबर करीम कि वो ढाल बन गए, 70 के करीब तीरों को अपनी पुष्ट पे रोका और नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूद की हिफाजत की। ये तो हजारों वाक़ियात थे। इसलिए ये जुमला वजीर आजम को भी माफी मांगनी चाहिए। ये उनकी हिमाकत और जिहालत का शाखसाना है। असहाबे रसूल डरने वाले नहीं, और माले गनीमत इसको लूट मार कहने से भी तौबा करनी चाहिए। ये माले मुतबर्रक है और असल बाबरकत माल है, लूट मार वाला ये माल नहीं। और नंबर 3, तीसरे तौर पे जरा समझना, ये बदर ओहद जो खंदक ahज़ाब को नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी अपनी लड़ाई पे फिट करें, ये फिट करना ये कुफ्र है। बदर ओहद की जंग खालिस तौहीद की हिफाजत के लिए थी, शिर्क के मुकाबला में। और इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी की लड़ाई खालिस दुनिया के लिए, खालिस कुर्सी के लिए है, खालिस अंग्रेज की वफादारी के लिए है, खालिस जमहूरी मगरबी जमहूरियत के दिफा के लिए है। इसलिए असहाबे रसूल की उन जंगों और गज़वात को आपस की लड़ाइयों पे पिट करना, यह सबसे बड़ा दजल, सबसे बड़ी तहरीफ, सबसे बड़ी बदमाशी है। इसलिए ये वाज़े कुफ्र है। असहाबे रसूल लड़ते थे तौहीद की खातिर, दीन मुहम्मदी की खातिर और दीन इलाही की खातिर। और आज ये सियासी जमातों की लड़ाई इक्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर, मगरबी गुलामी की खातिर, जमहूरियत जैसी लौंडी की खातिर। इसलिए इस कुफरिया निजाम पे असहाबे रसूल की जंगों को पिट करना ये दीन की तहरीफ है। इस पे हम मुतालबा करते हैं और उलमा से भी गुजारिश है इस नुक्ता को उठाएं। और इमरान खान जब तक माफी ना मांगे कि उसने असहाबे रसूल की जंगों को ये आपस की सियासी चपकलश और अपनी मगरबी जमहूरियत पर पिट करके शायर इस्लाम की भी तौहीन की, जिहाद की भी तौहीन की, असहाबे रसूल की भी तौहीन की है। तवज्जो है। फिर आगे रियासत मदीना। अब कितना कौम के साथ मजाक है और इस्लाम के साथ मजाक है। रियासत मदीना वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाना इमरान खान, ये अमीरुल मोमिनीन साहब, अमीरुल मोमिनीन को नमाज का पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने पीछे हज किया वो भी देखे, अमीरुल मोमिनीन को अभी तक तौहीद का नहीं पता, कभी पाक पतन पे झुक रहा है। अमीरुल मोमिनीन को तो बुनियादी मसला तौहीद का नहीं पता, अजमत सहाबा का पता नहीं, माले गनीमत का पता नहीं, तो ये रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन होगा? तो रियासत मदीना यही है। और रियासत मदीना की बुनियाद खुदा की तौहीद है। पैगंबर की सारी जिंदगी रियासत मदीना की बुनियाद खुदा का कुरान, खुदा की तौहीद है। अगर तुम रियासत मदीना बनाना चाहते हो, आज से ऐलान कर दो सारे तागूती निजाम कवानीन खत्म। और आज के बाद जैसे हमारे आईन में दर्ज है, पाकिस्तान का आईन किताब व सुन्नत होगा, निफाज किताब व सुन्नत, और जय कुरान मुकद्दस, जय सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जय पाकिस्तान का निजाम होगा, जय आईन होगा। अदालतों में लाओ कुरान, असेंबलियों में लाओ कुरान, और पूरे मुल्क में कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करो। ये रियासत मदीना है। गुलामी अंग्रेज की करते हो और नाम मदीने का लेते हो। फिर रियासत मदीना मुल्क में तो पता नहीं कब आएगी, चेहरे पे भी नहीं है। ये चेहरे पे भी मदीने वाले की रियासत नहीं। कलीन शहर, ये रियासत मदीना। खैर, इस पर तबसरा बाद में इंशाअल्लाह हो जाएगा। रियासत मदीना के नाम पे लोगों से फराड, और हमारे लोग भी, तब्दीली आ गई, अब आ गई तब्दीली, आगे और आएगी तब्दीली। ये अच्छी सजा मिल रही है, ये तब्दीलियां आ रही है। तो बहरहाल हम कहते हैं जो मर्जी करो, लेकिन शायर इस्लाम की तौहीन मत करना।
किताब सुन्नत असहाब रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर इस्लाम की तौहीन करोगे मिट जाओगे, बाकी जो दूसरे बहाने हैं वो बेशक करते रहो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि असहाबे पैगंबर ये डरने वाले भी नहीं, असहाबे पैगंबर ये बिकने वाले भी नहीं, और असहाबे पैगंबर ये वो हैं ये लूट मार करने वाले भी नहीं। असहाबे पैगंबर ये रब की जमात है और ऐसी मुकद्दस जमात है जिस पर आसमान के नूरी फरिश्तों को भी रश्क होता है।